اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، سب سے پہلے تو آج میرے جد امجد جد نقوی سادات امام علی نقی صلوات اللہ علیہ کی آمد آپ تمام مؤمنین کو دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو۔ اور آج کے دن ہمیں، جیسا کہ آپ ٹائٹل دیکھ چکے ہیں، مولوی تلہاڑا صاحب کو ربوبیت آئمہ پر، بالخصوص ربوبیت حیدر کرار پر جواب دینا ہے۔ اور وداؤٹ ویسٹنگ اے سنگل پارٹ آف ٹائم ان کی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آج مولا علی نقی کے توسط سے سلمان محمدی سلام اللہ علیہ کا ایک واقعہ، اور ویڈیو کے آخر میں ایک انتہائی عجیب بات، اسی تناظر میں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں، اسی تناظر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن برادران اہل سنت کی کتاب سے۔ تو پہلے مولوی تلہاڑا صاحب کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح خلط مبس کر کے انہوں نے خیانت سے کام لیا اس معاملے میں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ہیو اے لک آن اس کلپ۔ من ربوں کا دا جواب کی اللہ تے من اماموں کا دا جواب کی علی۔ یہ مطلب ہے او رب ہے، او رب ہے، علی امام ہے۔ من ربوں کا، تیرا رب کیڑا ہے؟ اللہ تے تیرا امام کیڑا ہے؟ علی۔ جدو سوال ہی بکھرے بکھرے نے رلان دی تینوں اجازت کنے دی؟ صدقہ جاواں بھائی، مولا تانوں جزائے خیر دے بھائی۔ کوئی اللہ جو بندے ہو تو انہوں رلان کی اجازت کنے دیتی ہے؟ اللہ دا سوال بکھرا ہے، مولا علی دا سوال بکھرا ہے۔ اللہ دے سوال نے چاکھنا اللہ من ربوں کا، رب اللہ نو آکھنے۔ کوئی اللہ جو بندے ہو رب اللہ نو آکھنے، حضرت علی نو امام آکھنے۔ اللہ نو امام نہیں آکھنا، اللہ نو امام نہیں نہ آکھنا۔ ہن گھبرائے جڑا گھبراندا ہے، جویں اللہ نو امام نہیں نہ آکھنا، ایویں علی نو رب نہیں آکھنا۔ جی عزیزان، آپ نے سنا، مولوی تلہاڑا صاحب فرما رہے ہیں جی جب سوال ہوں گے بعد از مرگ من ربوں کا، من اماموں کا، تو اللہ امیر المومنین کے لحاظ سے تفریق ہوگی۔ جس طرح اللہ امام نہیں ہے، اسی طرح امیر المومنین نعوذ باللہ من ذالک رب بھی نہیں ہے۔ اچھا حضرت، پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ نے کس حدیث سے استدلال کیا اس بارے میں؟ اول تو پہلی بات یہ، کچھ تقیہ پر محمول روایات میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں، جس کی تائید میں بہت سارے حوالے پیش کر سکتا ہوں، فی الوقت گنجائش نہیں ہے، ابھی مجھے جواز پر دلائل پیش کرنے ہیں۔ ان میں سے بھی اگر کوئی روایت آپ نے پیش کی ہوتی تب تو بات بن جاتی۔ جواز و عدم جواز پر جو بڑے بڑے علماء نے بحث کی ہے اس معاملے میں، وہ آپ کو دیکھنی چاہیے تھی۔ اس طرح بے تکی باتیں کرنا بلا دلیل، یہ کسی قسم کا کوئی حل نہیں ہے۔ مسائل بھی کبھی ایسے حل ہوئے ہیں تلہاڑا صاحب؟ اگر اس طرح مسائل حل ہو جائیں تو علماء کو اتنی ضخیم کتب لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسرا، ایک عقلی جواب اس کا میں آپ کو دے دوں، کیونکہ دلائل مجھے رکھنے ہیں، میں کتابی حوالے کے بغیر ویڈیوز نہیں بناتا جواب میں، اور نہ میں نے کبھی پہل کی ہے، ہمیشہ جواب ہی دیا ہے۔ دوسری موسٹ امپورٹنٹ بات اس کانٹیکسٹ میں یہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی مومن کہا ہے، اس کے توقیفی اسماء میں سے ایک المومن ہے، اور ہمیں بھی کئی دفعہ مومن کہا ہے، اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا، یا پھر مومن، یا پھر سورہ مومنون، اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو اب آپ کیا قرآن کے اوپر شرک کا فتویٰ لگائیں گے کہ ان دونوں کو آپس میں ملا کس نے دیا ہے؟ ملایا کس نے؟ الحمدللہ قرآن و حدیث سے ہی جواب دوں گا میں آپ کو کہ کس نے ملایا، کیا کیا، سب ٹھیک ہے، قرآن و حدیث سے ہی جواب آئے گا۔ حیرت ہے مجھے خدا کی قسم مومنین، میں آج قرآن و حدیث اور تاریخ تینوں معاملات کو سامنے رکھوں گا۔ پہلے تو اس عقلی جواب کا حل کر کے دینا مجھے کہ ملا دینا اس بات کی کہاں سے دلیل ہے کہ یہ شرک ہو گیا ہے۔ دلائل میں بعد میں دوں گا مولوی صاحب، فی الحال ایک عقلی سوال آپ پہ چھوڑا ہے کہ اللہ نے قرآن میں خود کو بھی مومن کہا ہے اور ہمیں بھی، تو کیا
माअज़ल्लाह सुमा माअज़ल्लाह, आपके फतवे के ऊपर चलते हुए क्या अल्लाह पे भी आप शिरक का फतवा लगाएंगे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप जिस मसलक की तर्जुमानी कर रहे हैं, पिंडी भटिया में जो इजलास हुआ था, आपने जाके साइन वगैरह, हमें सब पता है अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी साहब उसी मसलक के मशहूर ज़माना खतीब मौलवी शहनशाह नकवी साहब, मौलवी शहनशाह साहब ने खुद आपके इस अकीदे का रद्द किया अपने बयान में। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप ये क्लिप मुलाहिजा फरमा लें। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि या अल्लाह इन दोनों रब्बयानी, मेरे दोनों रबों पर ऐसे रहम कर जैसे बचपने में इन दोनों ने मेरे ऊपर रहम किया। तो भाई वालिदैन को रब कहना ठीक है, मौला अली को रब कहना ठीक नहीं है? जी मौलवी तलहाड़ा साहब, जिस मसलक की तर्जुमानी करते हुए, जिनके सिक्के हलाल करते हुए आप ये सारे मामलात रख रहे थे मोमिनीन के सामने और खलते मवज़ करके एक बेढंगी बात करके आप उन्हें गुमराह कर रहे थे, उसी मसलक के एक तर्जुमान ने आपकी अल्हम्दुलिल्लाह इस दलील को अक़लन रद्द करके दिखा दिया कि जब कुरान करीम के थ्रू वालिदैन के लिहाज से ये मामला साफ वाज़े है कि जब वालिदैन को रब कहा जा रहा है, शरई तौर पे जायज़ भी है, तो मौला अली को ना कहा जाए। अल्लाहु अकबर। इतनी बड़ी और इतनी मोटी बात आपकी अकल में ना आए तो फिर अकल पे मातम में किया जा सकता है और क्या किया जाए। खैर, हम चलते हैं कुरान की आयत की तरफ और उसकी तफसीर में जो अहदीस मासूमीन हम तक पहुंची हैं उसकी तरफ। फिर ये देख लेते हैं कि आया मामला क्या था और आप किस तरह खलते मबस कर रहे हैं। मिलाया किसने एना रलाया आपस किन्ने सरकार, मैं तानू दसना किन्ने रलाया। अपने कोलो फड़ियां ना मारो, दलाल नाल गल करया करो। खैर, पहली बात तो ये मेरे हाथ में हाफिज रजब बुरसी हिल्ली रिजवानुल्लाह अलैह की किताब मौजूद है, अद्दुरुस समीन। अजीजान, आप लोग सब स्क्रीन पर देख रहे हैं अद्दुरुस समीन। इस किताब में सफ़ा नंबर 355 पर ये उन आयात का तज़किरा जो मौला अली के फ़ज़ाइल में नाज़िल हुई थी। यहां पर लिखते हैं सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 69 के लिहाज से, वशरकतिल अर्ज़ु बिनूर रब्बिहा, जमीन अपने रब के नूर से रोशन हो गई। बिनूर रब्बिहा। इसकी तफसीर में इब्ने अब्बास ने कहा है कि रब का नूर इमाम है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात करता चलूं, इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया बहवाला तफसीर कुम्मी जिल्द 203, रब्बुल अर्ज़ यानी इमामुल अर्ज़, जमीन का रब यानी जमीन का इमाम। ठीक है जी, इमाम रब है, इमाम जाफर सादिक फरमा रहे हैं। जी मौलवी साहब, अब फिर इस पर एतराज़ होगा कि हाफिज रजब बुरसी की किताब काबिल कबूल नहीं है, उनकी किताब में बहुत से ज़ौफ़ होते हैं, बहुत ऐसी वैसी बातें। हालांकि मैं विसाखत हाफिज रजब बुरसी पे कई हवाले पेश कर सकता हूँ, लेकिन चलिए छोड़ें, रजब बुरसी को छोड़ें। एक बहुत बड़े आलिम बुजुर्गवार, उनकी किताब मैं पेश करना चाह रहा हूँ। बड़े पाए के मुज्तहिदीन में से थे शेख अली नवाजी शहरवर्दी। उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, असबात विलायत तकवीनिया। आप स्क्रीन पर सारे मोमिनीन देख रहे हैं, असबात विलायत तकवीनिया। अल्लाह अकबर। मुल्तान से छपी है, सफ़ा नंबर 227। बिल्कुल वही रिवायत तफसीर कुम्मी वाली, वो लिख रहे हैं कि तफसीर कुम्मी में इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की गई, और वही सूरह ज़ुमर की आयत में 69 बिनूर रब्बिहा वाली, अपने रब के नूर से। वहीं आगे वो लिख रहे हैं रब्बुल अर्ज़ इमामुल अर्ज़, वाज़े जमीन का इमाम जमीन का रब है। ठीक है जी। जी मौलवी साहब, चले हाफिज रजब अल बुरसी को तो छोड़ें, अली नमाजी शहरवर्दी पे अब आप क्या फतवा लगाएंगे, आप और शहनशाह नकवी साहब दोनों ही, और जितने भी उसूली हजरात हैं वो अपने इस मुज्तहिद पर क्या फतवा लगाएंगे, जरा मुझे सोच कर बताएं। खैर अजीजान,
मैंने आपके सामने दो प्रॉमिसेस किए थे, एक सलमान मोहम्मदी का वाकया और एक बिरादरान अहले सुन्नत की किताब से अजीबोगरीब हवाला। सलमान मोहम्मदी के वाक़े को नकल करने के लिए मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये मतबूआ दारुत तबलीग जाफरी इस्लामाबाद, मेरे हाथ में किताब मौजूद है। शम्सुल उलमा आगा सैयद मोहम्मद अबुल हसन मूसवी मशदी हाफिज़हुल्लाह ताला, उनकी किताब मौजूद है जी, सबील रशाद। ये किताब आपके सामने है। सफ़ा नंबर 131 पर उन्होंने वो वाक़या लिखा है बहवाला बुस्तानुल मारिफ, सफ़ा 124, मतबूआ शाम। लिखते हैं, अजीम सहाबी साहिब इसरार कामिलुल ईमान सलमान मोहम्मदी सलामुल्लाह अलैह बाद अज़ विज़ाल पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना की गली में जाते तो मुनाफिकीन आप पर आवाज़ें कसते और पत्थर मारते, कहते वो देखो ये अली को रब मानता है। ठीक है जी, सलमान मोहम्मदी तक की अकीदत इस मामले में वाज़ेह है। जी मौलवी तलाड़ा साहब, अब सलमान मोहम्मदी भी आपका क्या फतवा होगा, ये भी आप मुझे ज़रा सोच के बताइएगा। ठीक है, रलाया क्यों है, रला कौन है, ये है वो है, ये इस तरह की अजीबो गरीब बातें करके आप सिर्फ उन बेचारों को धोखा दे सकते हैं जो मुतालिया से आ रही हों। खैर अजीज़ान, ये थी शिया कुतुब। अब अक्सर मैंने एक चीज़ नोट की है कि सामने आने की तो ज़रूरत होती नहीं, माशाल्लाह मेरी वीडियोस पे कमेंट्स में या फिर बाद में उनके छोटे छोटे इक्तबासात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के मुझे काफ़ी डिक्लेयर करने के लिए कुछ नासिबी, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से नवासिब हजरात का अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीना हराम किया हुआ है और उनके अकाबरीन की किताबें दिखा दिखा के हक़ सैयदा पर उन्हें अच्छा खासा एक्सपोज किया है, मुनाजरा भी हुआ है इसी लिहाज से। तो ये हजरात क्या करते हैं जी, शिर्क और कुफर के फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो मैंने सोचा क्यों ना आइमा अहले बैत सलवातुल्लाह अलैहिम अजमाइन को आज बरेलवी, देवबंदी और वहाबी मुत्तफिका पीर की किताब से रब ही साबित कर दिया जाए। ये मेरे हाथ में जी फजलुल्लाह मार्केट लाहौर से छपी किताब मौजूद है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की अखबारुल अखयार। किताब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अखबारुल अखयार, सफ़ा नंबर 225। यहां पर हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है। कहते हैं हजरत अबू हुरैरा का ये कौल है कि मैंने रब, अब ब्रैकेट में तर्जुमा करते हुए डंडी मार दें, जो मर्जी लिख दें, हमने असली इबारत पढ़ दी, मैंने रब को मदीना में इस तरह चलते देखा कि आप सुर्ख जुब्बा और जूता पहने हुए थे। ये सुनते ही लोगों ने अबू हुरैरा से कहा कि अबू हुरैरा, मुसलमान हो जाने के बाद भी कुफरिया कलमात कह रहे हो? तो अबू हुरैरा मुस्कुराए फरमाए, मैंने रब यानी सैयदी हसन को इस तरह देखा। अल्लाह अकबर। किसको देखा जी? मौला हसन को। हजरत अबू हुरैरा जो नासबियों के नजदीक सहाबी हैं और लिखने वाला भी इनका अकाबिर आलिम अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, इनका मुहद्दिस, वो लिख रहा है कि हजरत अबू हुरैरा मौला हसन मुज्तबा को रब कहा करते थे। जी मौलवी साहब, अफसोस का मकाम है कि आप अपने साथ शिया का टाइटल लगा के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जबकि नासबी हजरात के मुत्तफिक आलिम बरेलवी, देवबंदी और वहाबी तीनों उलमा इस आलिम को ऑन करते हैं। कभी वक्त मिला तो तीनों मसलक की किताबों से इसकी तौसीक भी दे दी जाएगी। अगर कोई शक करे तो, अव्वल तो शक करना बनता नहीं है, मुत्तफिका आलिम है। मैं हैरान हूं वल्लाह, अपने साथ शीयत का टाइटल लगा के उन अकायद से इनहराफ कर रहे हैं और उन अकीदों को नाउज़ुबिल्लाह कुफरी और शिरकिया कह रहे हैं जिन्हें नवासिब अपनी किताबों में कबूल कर चुके हैं। मौलवी साहब, अगर पैसा घटिया चीज है तो उससे परहेज करें, ना कि उसे लेके अपना और उन बेचारे सादा लोग अवाम का ईमान बर्बाद करें, वरना जवाब तो अल्हम्दुलिल्लाह आएगा। गॉट इट? मूव ऑन। गली